has the potential to stand out. मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में इजाफे की वित्त मंत्री ने जताई उम्मीद। हांगकांग में वित्त मंत्री के साथ बीएसई के प्रमुख आशीष कुमार चौहान के अलावा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल रहा मौजूद। जेटली ने कहा, कारोबार के क्षेत्र में दिया जा रहा है विशेष ध्यान। देश के विकास में बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म निभा रहा है अहम भूमिका। बीएसई निवेश मंथन में आज बताएंगे बीएसई एसएमई में निवेश कर कैसे उठाएं फायदा। कम से कम 5 वर्ष के लिए निवेशकों को खास सलाह देंगे आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी। और बीएसई में कारोबार की गति 20 माइक्रोसेकंड करने का लक्ष्य अब दूर नहीं। मौजूदा वित्त वर्ष में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 7.3% से ज्यादा होगी। पिछले दिनों हांगकांग पहुंचे वित्त मंत्री ने इस बात की उम्मीद जाहिर की है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने APIC इंडिया कैपिटल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स समिट में केंद्र सरकार की नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्तर पर विपरीत हालात के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि में सुधार होने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार कई सुधार कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा कम हो रहा है और महंगाई काफी हद तक नियंत्रण में है। उन्होंने निवेशकों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। India, which today ended last year with a 7.3% growth rate, good fiscal figures, fiscal deficit gradually coming down. We are now aiming over the next 2 to 3 years to bring it down to 3%. Current account deficit down to 1.2%. Foreign exchange reserves very high. Inflation very much under control. And therefore the macroeconomic indications all seem to be positive. वित्त मंत्री ने यहाँ निवेशकों के बीच कहा कि सरकार के कई सुधार कार्यक्रम जारी रहने के संदर्भ में आगे तक का रास्ता दिखाई देता है। Direction of reform activity in India is now becoming consistently in one direction. And therefore the effort of all policymakers in India has been to improve on the levels of growth that India is capable of performing. APIC इंडिया कैपिटल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स समिट में वित्त मंत्री के साथ बीएसई के प्रमुख आशीष कुमार चौहान के अलावा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि कारोबार की बेहतरी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और मेक इन इंडिया अभियान की मुख्य बातों को भी सामने रखा। Foreign Investment Promotion Board, all clearances have been simplified. They are almost at the current level. Environment clearances, which used to be held up for years, are almost cleared, depending upon the policy regulations as quick as possible. States have framed their own single window clearances. सरकार इस बारे में सजग है कि उसे बड़े निवेश की जरूरत है और संसाधन के अलावा घरेलू निवेश अपर्याप्त हैं। Private investment has been somewhat slow. And this is on account of the fact that excess capacities have been built up in the past, and therefore a large number of companies have been working within those constraints. But I'm quite certain as the global situation improves and the domestic economy starts moving faster, domestic demand builds up, this is a challenge which our domestic companies are quite capable of overcoming. इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ग्रामीण समृद्धि और टैक्स सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर निवेश को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार जोर दे रही है। Lot of this saving has been invested in irrigation, it's been invested in infrastructure. We do believe that investment both in infrastructure and irrigation, and it's a record investment which is going on in these two areas, is actually capable of changing the face of Indian economy itself. A large amount of money has been invested in the national highway, the rural roads, the railways, the power sector, and a very large amount is being invested in irrigation programs so that results in agriculture also turn out to be positive. We have one of the largest financial inclusion programs going on in the government of India. 58% of India was connected to the banking system. To connect the balance 42%, we've had almost 180 million bank accounts opened. व्यापार को आसान बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश में इस तरह के प्रयासों से स्थिति बेहतर होगी। जेटली ने कहा कि भारत में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बन रहा है। The states, as they are constitutionally called in India, have also realized
that they have a great role in this growth story. Most of the regions have now set up single window clearances. Most of the regional governments have been going abroad, wooing investors to come to their states. A very large number of them have been organizing global investor conferences in order to boost up the investor confidence about investing in their states. Important complaint, at times a real complaint about India used to be that doing business in India was somewhat complicated and the procedures had to be simplified. As a part of this competitive federalism, the state rankings as to where is it easy to do business have been given. States are now competing with each other to improve upon each other as far as their rankings are concerned. देश में सकारात्मक माहौल की बात कहते हुए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री क्षमतावान हैं और उन्हें नेतृत्व का लंबा अनुभव है। India is now changing. Firstly, India has a government which has a decisive majority in parliament, and therefore the government is capable of taking important and difficult decisions. Secondly, India has in its Prime Minister Shri Narendra Modi a leader who's had about 13 to 14 years of experience as a development-oriented leader in the state of Gujarat. His performance speaks for itself. A strong leader capable of taking decisions which are critical to the interest of Indian economy. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव CY ल्योंग से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर तेजी लाने की बात पर जोर दिया। Direct taxes, I've announced a roadmap for bringing the direct taxation down to 25% over the next 4 years, starting from the coming 1st of April. Many of the exemptions are going to be phased out to cover up for the loss of revenue, so we'll have a very simple direct tax structure. The government has decided in principle, and we've lived up to our promise, no retrospective taxation as far as this government is concerned. As far as indirect taxes are concerned, both at the level of the states and the center, the GST legislation has been approved by the lower house of parliament. No doubt that in some of the coming sessions of parliament, the present one or the next one, the GST legislation would itself be passed. हांगकांग में APIC की तरफ से आयोजित इस सम्मेलन में वित्त मंत्री ने निवेशकों के सामने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रखा और भारत को निवेश के नजरिए से बेहतर विकल्प बताया। 55% of India's population, which is dependent on 15% of our total GDP coming out of agriculture, a lot more people will have to be taken into the manufacturing sector, a lot more people into the services, a lot more cities, a lot more smart cities, a lot more suburban townships for which infrastructure is required, while strengthening the rural areas in terms of irrigation, in terms of rural infrastructure, in terms of providing urban-like facilities on these areas. This is a priority as far as the government is concerned. We are conscious of the fact that for all this, you require a large amount of investment. For all this, you require a resource. Domestic investment itself is inadequate. And certainly, I think international investment is going to be a great additionality of resource for us. And with all these economic activities planned, even in the midst of somewhat a gloomier global situation, I think India has the potential to stand out as a relative brighter spot. We grew by 7.3%, and I do hope in the coming year we are able to outperform the last year's growth rate. आगे देखिए BSc SME में निवेश कैसे करें।
बीएसई निवेश मंथन में आज बीएसई एसएमई एक्सचेंज की विस्तार से जानकारी देंगे। देश में बड़ी कंपनियों की पूंजी बढ़ाने के लिए मेन बोर्ड यानी शेयर बाजार है, लेकिन छोटी कंपनियों या उद्योगों के लिए पूंजी जुटाना बड़ी समस्या रही है। छोटे और मध्यम उद्योगों की समस्या को दूर करने के लिए बीएसई एसएमई एक्सचेंज 2012 में लाया गया। 15 साल से छोटी कंपनियों को भारत के स्टॉक मार्केट में आकर भंडोल इकट्ठा करने का कोई चांस नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज, जिसको हम एसएमई के रूप से जानते हैं गवर्नमेंट में, उनको भी अपने तरह से भंडोल इकट्ठा करने की एक सुविधा स्टॉक एक्सचेंज के जरिए देनी चाहिए। तो बीएसई ने मार्च 2012 से छोटी कंपनियों को भी स्टॉक मार्केट में आके जो पैसे इकट्ठे करने के लिए, निवेशकों से पैसे इकट्ठे करने के लिए एक सुविधा दी हुई, एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ, जिसका नाम बीएसई एसएमई रखा गया था। एसएमई उद्योग देश के विकास में अहम भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन जब बात लोन की आती है तो यही सवाल उठता है कि पूंजी कितनी है। भारत में एसएमई की जो संख्या है बहुत अधिक है। करीब 10 लाख से भी अधिक स्मॉल मीडियम सेक्टर कंपनियां भारत में काम करती है, और उनको जो ग्रोथ चाहिए उसके लिए उनको अपने लिए पैसे जुटाने पड़ते हैं, क्योंकि जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तभी भी बैंक पूछती है कि भाई आपके पास इक्विटी कितनी है। तो जो उद्योगपति होते हैं, छोटे छोटे उद्योगपति होते हैं, वो अपने लिए इक्विटी जुटा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी इक्विटी जो प्रॉफिट मिलता है कंपनियों से उसी में से आती है, और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। तो बाहर से भी दूसरे निवेशकों से पैसे बीएसई एसएमई के जरिए जुटा सकते हैं, और अपने जो धंधे हैं उनको और मजबूत बना सकते हैं, उनका और व्याप कर सकते हैं, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी, उनका सेल्स वगैरह और बढ़ सकता है। एसएमई उद्योग के तेजी से विकास के लिए ये एक्सचेंज महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। बीएसई एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का सिलसिला 108 तक पहुंच चुका है। आने वाले वक्त में कई और कंपनियां बीएसई एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड होंगी। करीब 108 से भी अधिक कंपनियां लिस्टेड है। अगले 2 से 3 महीने के अंदर और 30 अधिक कंपनियां वहां पर लिस्ट होने की संभावना है। तो हर सप्ताह 1 या 2 नई कंपनियां आज एसएमई में लिस्ट हो रही है। बीएसई एसएमई एक्सचेंज आने के बाद से देश में एसएमई की तस्वीर बदली है। कैपिटल की हर जरूरत पर ये प्लेटफॉर्म फायदेमंद साबित हुआ है। इतना ही नहीं, छोटी कंपनियां धीरे धीरे तरक्की करके मेन बोर्ड में चली जाती हैं। एसएमई के माध्यम से कई जो छोटे उद्योगपति हैं, जो कभी सोचते नहीं थे कि भाई मैं धीरू भाई अंबानी बन पाऊंगा, या मैं रतन टाटा बन पाऊंगा, या मैं अजीम प्रेमजी बन पाऊंगा, तो आज वो बीएसई एसएमई के जरिए बीएसई पे आ सकते हैं और अपनी कंपनी को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरे निवेशकों को साथ लेकर उनको भी प्रॉफिट में हिस्सा दिलवा सकते हैं, और जब कंपनी बड़ी बन जाती है तो मेन जो बीएसई मेन बोर्ड कहा जाता है उसमें भी अपनी कंपनी को ऑटोमेटिकली ला सकते हैं। तो बीएसई एसएमई की जो ये योजना है वो छोटे उद्योगपति के लिए है। यही नहीं, निवेशकों के लिए ये प्लेटफॉर्म बेहतर विकल्प देता है। जो निवेशक लंबे वक्त के लिए निवेश करते हैं उनके लिए ये बेहद फायदे का सौदा साबित होता है। छोटी कंपनियां ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है तो निवेशकों को अच्छा फ़ायदा निवेश के बाद मिलता है। तो कई कंपनियां, इनमें जो 108 कंपनियां हैं उसमें से करीब करीब 60 से भी अधिक प्रतिशत कंपनियां पॉजिटिव रिटर्न्स दे रही है, और उसमें से कई कंपनियां बहुत अच्छा रिटर्न दे रही हैं। तो क्योंकि छोटी कंपनियां होती है वो उनका ग्रोथ भी ज़्यादा होता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है, तो उनके जो शेयर प्राइस होते हैं उसमें भी बढ़ोतरी ज़्यादा होती है। इसलिए मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए ये बीएसई एसएमई का भी एक जरिया है, जहां पर वो कंपनी को जानते हैं, उसका अभ्यास करके उसमें निवेश करते हैं, तो उनको वहां पर भी अधिक से अधिक लाभ होने की संभावना है। बीएसई एसएमई एक्सचेंज की सेवाएं ही निवेशकों का ध्यान खींचती हैं। इसके तहत सदस्यों के तकनीकी और गैर तकनीकी सवालों के समाधान के लिए विशेष कक्ष, सुझाव या फीडबैक की प्राप्ति और उस पर अमल करना, समय समय पर मॉक ट्रेडिंग का संचालन, अलग अलग विभागों के बीच सामंजस्य रखना, सूचीबद्धता नियमों एवं उप नियमों के संबंध में कंपनियों को जानकारी देना, कंपनियों को उनकी बैलेंस शीट तैयार करने और सही समय पर दाखिल करने के लिए सलाह देना,
कंपनियों को सूचीबद्धता की सभी आवश्यकताएं पूरी करने के संदर्भ में सलाह देना, कंपनियों को इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ या प्राइवेट प्लेसमेंट की प्रक्रिया के संदर्भ में सलाह देना। जागरूक निवेशक को बीएसई एसएमई एक्सचेंज में निवेश करने का फायदा होता है। नियमों के मुताबिक अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप बीएसई एसएमई एक्सचेंज में निवेश कर सकते हैं। इस एक्सचेंज में भी आप आईपीओ और सेकेंडरी मार्केट की तर्ज पर निवेश कर सकते हैं। छोटी कंपनियां हैं, रिस्क ज़्यादा है, तो जो हमारे रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके जो रेगुलेशन के मुताबिक मिनिमम कम से कम 1 लाख रुपये का आप निवेश कर सकते हो, और 1 लाख रुपये के मल्टीपल में, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे आप उसमें निवेश कर सकते हो। तो जब आईपीओ आता है एसएमई का, उसमें भी आप निवेश कर सकते हो, और जब सेकेंडरी मार्केट होता है कि जैसे दिन ब दिन ट्रेडिंग होता है, उसमें भी मार्केट मेकिंग की सुविधा पहले 3 साल तक रेगुलेटर्स ने नियुक्त की हुई है। तो उस हिसाब से मार्केट मेकर्स आपको 3 साल तक लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसमें भी निवेश कर सकते हो। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ किसी भी विकास करने वाली कंपनी के लिए पैसा जुटाने का अहम तरीका है। बीएसई एसएमई एक्सचेंज में आईपीओ की प्रक्रिया में कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। मर्चेंट बैंकर का चयन, पूंजी और मूल्यांकन का पुनर्गठन, ऑफर डॉक्यूमेंट, मार्केटिंग रणनीति तय करनी पड़ती है। साथ ही कॉर्पोरेट और उसकी इक्विटी क्षमता का प्रभावशाली संचार करना पड़ता है। जो मर्चेंट बैंकर एक ऐसी संस्था है जो आपको ये जो सूचीबद्ध करने में, लिस्टिंग करने में पूरी तरह से सहाय रूप होती है, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा उनका प्रमाणित किए जाते हैं वो लोग, और उनका रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड पे होते हैं, और वो लोग आपको समझाएंगे कि प्रॉस्पेक्टस आपका कैसे बनता है। आपके जब पब्लिक में आप जाते हो अपनी कंपनी लेकर के सूचीबद्ध करने के लिए, तो आपको पब्लिक जो लोग निवेश करेंगे उनको आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। वो आपके लिए आपको पूछ के आपकी कंपनी के जितने भी कागजात है उसमें से देख के उसमें वो प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, फॉर्म्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जो निवेशक फॉर्म्स फिल करते हैं। बीएसई एसएमई एक्सचेंज में जोखिम प्रबंधन ठीक वैसे ही लागू होता है जैसे कि मेन बोर्ड पर होता है। मेन बोर्ड में लागू मार्क टू मार्केट मार्जिन, वैल्यू एंड रिस्क मार्जिन, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन और विशेष मार्जिन एसएमई एक्सचेंज पर भी लागू है। आज भारत में करीब करीब 45% रोजगार जो है, उद्योग से जो रोजगार आता है उसमें से 45% रोजगार एसएमई के जरिए आता है। भारत को अगले 20 साल में करीब करीब 1.5 करोड़ से भी अधिक लोगों को हर साल नई जॉब देनी है। तो वो जॉब्स क्रिएट करने के लिए एसएमईज जो है बहुत उपयोगी हैं, और इसलिए भारत के लिए एसएमई का जो इम्पोर्टेंस है बहुत अधिक है। और हमें खुशी है कि बीएसई उसमें एक भाग बन रहा है कि जो छोटे छोटे उद्योग भी बीएसई पे आते हैं, अपने लिए पैसे जुटाते हैं लोगों से, निवेशकों को भी अच्छे फायदा मिलता है। बीएसई एसएमई जैसा प्लेटफॉर्म देना बीएसई के लिए गर्व की बात है। एक ऐसे वक्त में जब एसएमई उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पूंजी की जरूरत आई, तो बीएसई एसएमई एक्सचेंज की बदौलत तस्वीर बदल गई। विश्व स्तर पर बीएसई एसएमई के कदमों की सराहना हो रही है। विश्व भर में लोग उसको सराहते हैं कि जो भारत में जो किया गया बीएसई एसएमई के जरिए, कि छोटे छोटे उद्योगपतियों को एक उत्साहपूर्ण तरीके से पैसे जुटाने की व्यवस्था की गई है, वो कई दूसरे देशों, विकसित देश भी आज भारत की तरफ देख रहे हैं। आज आयोस्को करके एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया भर के रेगुलेटर्स, सिक्योरिटीज मार्केट के रेगुलेटर्स वहाँ बैठते हैं, उनकी मीटिंग्स में भी बीएसई एसएमई की चर्चा होती है। मेरा ये मानना है, आगे देखिए, निवेशकों के लिए एक्सपर्ट की जरूरी सलाह। वो हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है।
बीएससी निवेश मंथन में एक्सपर्ट की सलाह आपके द्वारा किए जा रहे निवेश के काम आ सकती है। आज आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी क्या सलाह दे रहे हैं, आइए देखते हैं। मेरा ये मानना है कि ये इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो हाई रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट्स है। इसमें बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल सकती हैं। पिछले 30-35 साल का अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो एवरेज में 16 से 18% रिटर्न प्रति वर्ष इसने दिया है क्यूमुलेटिव तौर पे। इस मार्केट में पैसा कमाना संभव है अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो। लॉन्ग टर्म का कहने का मतलब है कि कम से कम 5 वर्ष के लिए अगर आपके पास पैसा आपकी पूंजी लगाने की हो तो इस मार्केट में लगाइए। 5 साल में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछली हिस्ट्री देखें तो कोई 5 वर्ष ऐसे नहीं गए जिसमें इस मार्केट में नुकसान हुआ हो। आप 10 साल की अगर कोई क्यूमुलेटिव हिस्ट्री देखें, मूविंग एवरेज देखें, तो कोई समय ऐसा नहीं है जब रिटर्न नहीं मिला है। बीएससी निवेशकों के लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म देने के लिए प्रतिबद्ध है। बीएससी की बोल्ट प्लस प्रणाली देश की सबसे तेज रफ्तार वाली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्रणाली है और उसमें एक सौदे का निर्देश 200 माइक्रोसेकंड की रफ्तार से पूरा होता है। कारोबार की गति 20 माइक्रोसेकंड करने का लक्ष्य कुछ महीनों में पूरा होने की संभावना है। ये मौजूदा गति के मुकाबले 10 गुना तेज होगी। बीएससी ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए पैन आधारित सेल्फ ट्रेड प्रिवेंशन जांच कार्य प्रणाली शुरू की है। अब ग्राहकों की स्थायी खाता संख्या यानी पैन के आधार पर सेल्फ ट्रेड की जांच की जाएगी। ट्रेडिंग सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस सुविधा का उपयोग करें। बीएससी निवेश मंथन एक मंच है। इस कार्यक्रम के जरिए अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी सवाल कर सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है बीएससी इंडिया। इसके साथ साथ जो लोग ट्विटर पर एक्टिव हैं वो हमें @BSC India पर अपने सवाल भेज सकते हैं। बीएससी के तमाम वीडियो और अन्य कार्यक्रमों को देखने के लिए आप YouTube के बीएससी इंडिया अकाउंट पर भी देख सकते हैं। बीएससी निवेश मंथन में आप हमें बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 022-227-28097। हमारे एक्सपर्ट्स आपके हर सवाल का जवाब देंगे। बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के लिए न्यूज रूम मीडिया की प्रस्तुति।